Oh, finally. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay, so can I start? We're already late. I'll just share screen. Is my PowerPoint visible? Can you kindly confirm if my PowerPoint is visible? Good evening. Okay. Thank you for confirming that it is visible. So, a very good evening, and today's webinar is about creating thinking classrooms of science. So, new education policy has come, and the main idea in the new education policy is that number one, the children should be able to enjoy the learning, and secondly, they should be able to think. They when they look at any new situation in life, they should be able to independently make sense of it. And how they will make sense of it? By analyzing different things and then trying to put together, trying connecting with their previous knowledge, or transferring the knowledge from one field to another field. Because it is increasingly found that children who pass out from schools or colleges, when they go to real life, they go to workplaces, they are unable to make sense of new situations, they are unable to analyze, they are unable to evaluate different options and take informed decisions. So now a big responsibility has been entrusted to us, and it has to be brought in focus in classrooms, that how we should create classrooms so that children are able to observe keenly a new situation, to be able to analyze the various observations, to connect the different observations that they make, and to connect it with their previous knowledge, and then find, identify problems and explore solutions. So, how we can create such thinking classrooms of science? That is the topic of today. So, please write in chat box how many of you are science teachers. Am I audible or not? Some people are writing no sound. Am I audible? Okay, I am audible. So now, if you are teaching science subjects, or even if you are not teaching science, please write down your subject in the chat box so that I know how many of you are science teachers. Okay, so I proceed further. So first I'm taking up some situations which you can take up after teaching a concept. So these situations are from physics, and then I will take up situations which you can take up before teaching a concept, right? So one of the things that is very important for creating thinking classrooms is give them a lot of visual material, because when they see something in front of them without being told about it or without putting word into it, the children are compelled to analyze whatever is in front of them in form of pictures. So here I go. Now I have questions for you, which you see yourself, analyze them, enjoy them, and put the answers in the chat box. So first, I will be showing you three through diagrams, and then I want you to decide that which box has the greatest density. And you have to give me a reason for your answer. Please write in the chat box. So first box is in front of you. Which one has greater density? Box A or box B? Which one do you think has greater density? Box A or box B? Okay, so you are writing box B has greater density. Why do you think it has greater density? Just write in the chat box, why do you think it has greater density? More elements, more particle.
More particles. Okay, wonderful. Now I have another question for you. Now you see, yes, somebody wrote molecules are closer. That's good. So now in the second part, what would you say? C or D? Which one has greater density? Now you cannot say more particles. Now the particles are same. Okay. So now you are saying that C is having greater density, but now you cannot say that number of particles are more. So what would you say? Why do you think the density of C is greater? More particles, more density. No. Area is less volume. Right. Wonderful. That means now you're realizing that it is not only the number of particles which matter, it is also the volume which matters. And also in both of them, the molecules are closer, right? So now you can answer this. So what do you think? E has greater density or F has greater density? Now neither the number of molecules is same nor the volume is same. So now what would you do? Now what would you say? What would your answer be? Yes. Now can you give answer or not? अब आप जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते कि ई की डेंसिटी ज्यादा है या एफ की डेंसिटी ज्यादा है? आपको क्या ये पता लगाने के लिए कोई और इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी? सो नाउ यू नीड टू नो कि अब वॉल्यूम कितना है, मास पर यूनिट वॉल्यूम आपको निकालना है. वंडरफुल. लेकिन अब इसके लिए आपको एफ का वॉल्यूम चाहिएगा. तो ये 3 क्वेश्चंस के द्वारा आप ये चीज क्लियर बच्चे को के माइंड में डाल सकते हैं कि सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही मैटर नहीं करता है, पर विजुअली वो देख पा रहा है कि वॉल्यूम भी मैटर कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स कितने नजदीक हैं ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ साथ वॉल्यूम भी पता हो. अब मैं आगे बढ़ती हूँ. अब मुझे बताइए, विच डील वुड यू प्रेफर? यहां पर मैंने लिखा हुआ है, आप 100 रुपीज पर केजी आयरन खरीदना पसंद करेंगे या 100 रुपीज पर लीटर खरीदना पसंद करेंगे? कि आपके पास 100 रुपए हैं. एक व्यक्ति आपको ऑफर कर रहा है 1 केजी लोहा, दूसरा व्यक्ति ऑफर कर रहा है 1 लीटर लोहा 100 रुपए में, और आप एक व्यक्ति कह रहा है भाई कोई भी ले लो फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बराबर हैं, और एक चौथा व्यक्ति कह रहा है कि 100 रुपए में 1 लीटर गला हुआ लोहा मिल रहा है. अब आप क्या लेंगे? आप 100 रुपए में 1 किलो लेना पसंद करेंगे या आप 100 रुपए में 1 लीटर लोहा लेना पसंद करेंगे? तो अगर आप कह रहे हैं कि 100 रुपए में 1 किलो लोहा लेना पसंद करेंगे, तो ऐसा क्यों? 1 लीटर क्यों नहीं लेंगे आप? ज्यादा लोहा आप खरीदना चाहोगे ना 100 रुपए में. तो अगर आप मास के हिसाब से खरीदते हो तो 1 केजी मिल रहा है, और अगर आप दोनों को कंपेयर करना चाहते हो कि 1 लीटर लोहे का क्या मास है, तो आप बताइए कि 1 लीटर लोहे का मास जो है वो 1 किलो से ज्यादा होगा या कम होगा? हाँ, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. अब डेंसिटी लोहे की 1 से ज्यादा है या कम है? लोहे से ज्यादा है. तो इसका मतलब 1 लीटर का मास उसकी डेंसिटी के बराबर होगा, जो कि 1 किलो 1 से ज्यादा है. इसका मतलब ज्यादा लोहा आपको किस में मिल रहा है? ऑप्शन बी में मिल रहा है या ए में मिल रहा है? आप बताइए. 1 लीटर water is 1 kg, but 1 liter iron is not 1 kg. 1 liter iron has more mass because 1 liter multiplied by density of iron would give you mass more than 1 kg. So now tell me, which one would you buy? A or B? Still A. Why would you buy A? See, for 100 rupees, you are getting only 1 kg if you buy according to A.
But if you buy according to B, in 1 liter of iron, you are getting 1 liter into the density of iron, so many kgs of iron. So shouldn't you go for B? See, so these are the kind of questions which will make children think. And this is what we need to do. That we have to give practice to our children for such thinking questions. Next, now look at this. There is a frame in which there is a reflection. One pen with red cap is here and another pen with blue cap is here, and both are reflected in the mirror. Now, when you look at the two images in the mirror, you think of the light rays which one starts from blue cap, strikes the mirror and comes to the camera. Another one starts from the red cap, strikes the mirror and comes to the camera. Now for camera, your eye position you can consider as the camera. So if R1 is the angle of reflection of the rays which are going from blue cap to the camera, and R2 is the reflection of the ray going from red cap to the mirror. I'm sorry, both is written blue here, but R2 is for red, right? So now tell me whether R2 is greater or R1 is greater. Yes, R1 is greater. R1 is greater because it is from the nearer image. So farther image will have a smaller angle of reflection and the nearer one have a greater angle of reflection, right? So now when the children are looking at the image, they are compelled to analyze कि कौन सी चीज कहाँ है. हमारी आंख अगर यहाँ है तो हमारी आंख में जो ब्लू कैप से रे आ रही है वो कहाँ है या रेड वाला ज्यादा बना रही है. तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट थिंकिंग क्वेश्चन. अब ये बताइए कौन सा बल्ब है जो कि लाइट अप होगा आउट ऑफ 1 2 3 4. कौन सा बल्ब लाइट अप होगा? आपको क्या लगता है? आंसर में लिखिए 1 2 3 4 में से कौन सा बल्ब लाइट अप होगा? एक बैटरी है, बल्ब है और एक तार से कनेक्ट किया हुआ है बल्ब को. तो अब 3 जवाब आए हैं नंबर 1. अच्छा, सारे के सारे नंबर 1 बता रहे. तो नंबर 2 क्यों नहीं लाइट होगा आपके हिसाब से? अब जवाब आ रहे हैं 2 भी आ रहा है, किसी ने 1 भी दिया है, किसी ने 3 4 अभी तक दिया नहीं है. ऑल. अच्छा, अब एक व्यक्ति है जो कह रहे हैं ऑल. डू यू एग्री कि ऑल विल लाइट अप? अब यहां बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि बल्ब जलने की कंडीशन क्या है. कि बल्ब में एक एंड होता है जो कि इस पोर्शन में होता है, उसका जो ये सिलिंड्रिकल पोर्शन है, और एक टर्मिनल होता है जो ये ब्लैक वाले पोर्शन में है. तो दोनों टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से एक एक टर्मिनल कनेक्टेड होना चाहिए. तो अब देखिए ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है सिलिंड्रिकल, ये बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, और जो ब्लैक वाला टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है. तो ये तो जल गया. सेकेंड वाला देखिए, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है ये सिलिंड्रिकल वाला, और बैटरी के नेगेटिव से ये ब्लैक वाला. तो कंडीशन तो फुलफिल हो गई ना कि बल्ब के दोनों टर्मिनल बैटरी के दो अलग अलग टर्मिनल से कनेक्टेड होने चाहिए. तो फिर ये भी जल जाएगा. अब तीसरा देखिए, तीसरे में ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और ये जो ब्लैक वाला टर्मिनल है बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है. तो ये भी जलना चाहिए. और फोर्थ में देखिए, ये जो काला पोर्शन है ये तार के थ्रू बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और ये जो व्हाइट वाला सिलिंड्रिकल पोर्शन है ये डायरेक्टली बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है. तो ये भी जलना चाहिए. लेकिन ये बच्चा मैकेनिकली नहीं जवाब दे सकता, उसे लॉजिकली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. 3 और 4 क्यों नहीं कनेक्टेड है? बिल्कुल कनेक्टेड है. आप देखिए
ये यहाँ जो बैटरी का बॉटम है ये पूरा का पूरा जो है ये कनेक्शन देता है, जिससे कि आपके बल्ब का ये राउंड वाला पोर्शन कनेक्टेड है, वो कंडक्टिंग पोर्शन। और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है जो कि आपके सॉकेट में जाके फिट होता है, वो वाला पार्ट तार के थ्रू बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड। तो सारे ही बल्ब ऐसे हैं जो कि जरूर जलेंगे, और आप ये करके देखिए क्लासरूम में, राइट। अब अब देखिए, जब आप टॉर्च पढ़ा लेते हैं या कोई सिंपल सर्किट पढ़ा लेते हैं, अब एक एप्लीकेशन के लिए हमने कहा कि एक क्लासरूम में बच्चे ने एक लाइट हाउस बनाया है। अब इस लाइट हाउस में कौन सा सर्किट पॉसिबली हो सकता है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, कौन सा हो सकता है? अब आप खुद इसको ध्यान से देखिए, आप एनालाइज करेंगे, आपको एनालाइज करना ही पड़ेगा कि किसमें क्या कनेक्शन है, और तभी आप जवाब दे पाएंगे। बिना सोचे समझे आप इसका जवाब दे ही नहीं सकते। तो आई इनवाइट यू ऑल टू काइंडली लुक एट द सर्किट एंड टेल मी which one will is likely to be the circuit inside the lighthouse. अब किसी ने बोला है नंबर 1, कोई बोल रहा है 1 और 3, कोई बोल रहा है नंबर 4। तो देखिए, अभी अभी हमने एक कॉन्सेप्ट किया है। हमने बल्ब का क्या कॉन्सेप्ट किया है कि बल्ब में दो टर्मिनल होते हैं, एक सिलिंड्रिकल पोर्शन पे होता है और एक नीचे होता है, राइट। अब अगर आप 3 बोलेंगे तो देखिए दोनों कनेक्शन नीचे वाले पोर्शन से हैं, सिलिंड्रिकल पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, तो 3 तो जलेगा ही नहीं। फिर कोई बोल रहा है 4। अब 4 में देखिए, बैटरी, ये बल्ब के दोनों पोर्शन जो हैं ये स्विच के थ्रू बैटरी के सिर्फ पॉजिटिव से जुड़े हुए, नेगेटिव से तो कुछ जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो फिर ये सर्किट जल सकता है क्या? नहीं जल सकता। अब नंबर 2 में देखिए, बैटरी का पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, नेगेटिव जुड़ा हुआ है, बल्ब में भी दोनों टर्मिनल जुड़े हैं, लेकिन स्विच के दोनों टर्मिनल नहीं जुड़े हुए, स्विच का एक ही टर्मिनल सर्किट में जुड़ा हुआ है, तो ये भी नहीं जलेगा। अब इसको चेक कर लीजिए, इसमें बैटरी के पॉजिटिव से बल्ब का एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है, बल्ब का दूसरा टर्मिनल स्विच के एक से जुड़ा हुआ है, और स्विच के दूसरे टर्मिनल से बैटरी का नेगेटिव जुड़ा हुआ है। ये सर्किट है आपका कंप्लीट। तो अब अगर आपने पीछे वाला बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर भी ये समझ जाएगा कि नंबर 3 तो वर्क नहीं करेगा। फिर तीनों, बाकी तीनों में उसको ये देखना है कि हर कंपोनेंट के दोनों टर्मिनल सर्किट में कनेक्टेड हैं या नहीं। तो इस तरह से ग्रेजुअली आप उसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर उसकी थिंकिंग करा सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सर्किट में ही है। अब आप देखिए, चारों सर्किट देखने में बिल्कुल एक जैसे कनेक्शन है। अब बच्चा पीछे ये देख चुका है कि ये वाला सर्किट काम करेगा। अब अगले में आपने वही सर्किट बना दिया, लेकिन आपने उसको क्या दिया अब कि अब एक वायर यहाँ कॉपर का, यहाँ सिल्क का है, यहाँ एक एल्यूमिनियम और एक कॉपर का है, यहाँ एक सिल्क और सिल्क है, और यहाँ कॉपर कॉपर है। अब बताइए कि कौन सा सर्किट काम करेगा? 2 and 4 कोई कह रहा है, कोई कह रहा है 4, ओनली 4, 2 and 4। तो ओनली 4 क्यों कह रहे हैं? आप देखिए, 1 क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि यहाँ पर एक इंसुलेटर है। 3 नहीं करेगा क्योंकि दोनों इंसुलेटर है, लेकिन 2, यहाँ एल्यूमिनियम है, यहाँ कॉपर है, दोनों कंडक्टिंग है, तो ये तो काम करेगा। और यहाँ तो ये भी कंडक्ट कॉपर ही और ये भी कॉपर है, तो ये भी काम करना चाहिए। तो अब देखिए, हमने एक सिंगल ऑप्शन नहीं दिया है करेक्ट, अब हमने डबल ऑप्शन दिए हैं जो कि करेक्ट है। तो यहाँ पर बच्चा तुक्का लगा के जवाब नहीं दे सकता है, यहाँ पे बच्चे को सोचना ही पड़ेगा कि एक से ज्यादा ऑप्शन करें। तो इस तरह से हम एक थिंकिंग क्लासरूम तैयार कर सकते हैं। अब मैंने कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे लिए हैं जो कि पढ़ाने के पहले आप ले सकते हैं। इसमें मैं बायो के कुछ कॉन्सेप्ट्स ले रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेल डिवीजन की।
अब बच्चे को बताना है कि सेल डिवीजन इज एसोसिएटेड विद बिकमिंग व्हाट। अब आप ये सारे ऑप्शंस देखिए, कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से, कौन सा या कौन कौन से ऑप्शन सही आपको लग रहे हैं? ए है मोर इन साइज, बी है मोर, ए इज मोर इन मास, बी इज मोर इन साइज, सी इज मोर इन नंबर, D is less in mass, E is less in size, F is less in number, and G means separated. तो बच्चे के माइंड में सेल डिवीजन की क्या पिक्चर है, उसके हिसाब से सेल डिवीजन में क्या क्या हो रहा है, ये हम बच्चे से निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले से उसके माइंड में सेल डिवीजन के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। अब मैं ये देख रही हूं कि यहाँ पर ज्यादातर आंसर सी है या बी और सी हैं या सी डी ई और जी हैं। तो अब देखिए, जब सेल डिवीजन होता है तो मोर इन मास होता है या नहीं होता है? यस और नो? अगर एक सेल को डिवाइड करके हम दो पोर्शन में कर दें तो वो मास में हर पार्ट बढ़ जाता है या घट जाता है, ये बताइए। मास बढ़ेगा या घटेगा? Mass will not increase, it will become less because same thing is being divided in two parts. तो आप बताइए कि जब मास कम हो रहा है हर पार्ट का कंपेयर टू द सेम, नहीं, टोटल मास जरूर सेम रहता है, लेकिन हर डिवीजन जो होता है वो उसका मास कम हो जाता है ना। सेल डिवीजन में जो दो सेल प्रोड्यूस होते हैं, हर एक का मास ओरिजिनल से कम है, तो लेस हुआ मास। फिर मोर इन साइज हुआ क्या? नहीं हुआ। मोर साइज में भी छोटे हो गए। मोर इन नंबर हुआ क्या? यस, मोर इन नंबर हुआ। तो सी सही है, डी सही है, ई सही है, एफ गलत है, पर जी सही है क्योंकि वो सेपरेट हो गए, राइट? तो सी डी ई एंड जी, वंडरफुल। सो नाउ यू हैव बीन टेस्टिंग कि बच्चों के दिमाग में क्या आइडिया था सेल डिवीजन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप ये बताइए कि व्हाट बायोलॉजिकल प्रोसेस कॉजेज ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब ये आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या वर्ड्स हैं जो ये एक्सप्रेस करेंगे कि व्हाट बायोलॉजिकल प्रोसेस कॉजेज ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब किसी ने लिखा है न्यूट्रिशन, और बताइए। CDEG? नहीं, CDEG तो पिछले क्वेश्चन का जवाब था। अब मैं आपसे चाहती हूँ कि आप ये मेटाबॉलिज्म, अच्छा, इस सेल डिवीजन, ओके, सेल डिवीजन, न्यूट्रिशन कोई बोल रहा है, कोई सेल डिवीजन बोल रहा है, कोई मेटाबॉलिज्म बोल रहा है, और बताइए एक ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रोथ करता है? सेल डिवीजन, ओके, मियोसिस, ओके, सेल डिवीजन, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशियस फूड, सेल डिवीजन, म्यूटोसिस, माइटोसिस शायद लिखना चाहते थे आप, न्यूट्रिशन, फूड, सेल, व्हाट अबाउट सेल, इंट्रिंसिक ग्रोथ, बाइनरी फ्यूजन। देखिए, अब आप खुद देखिए कि यहाँ पर ज्यादातर आंसर जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में नहीं बता रहे हैं, जनरल फैक्टर बता रहे हैं, न्यूट्रिशन। लेकिन हम बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, और जब बायोलॉजिकल की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर लोग लिख रहे हैं सेल डिवीजन। लेकिन अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि जब सेल डिवीजन होता है तो सेल का साइज छोटा हो जाता है, मास भी छोटा हो जाता है, तो फिर ग्रोथ कैसे होगी, आप ये बताइए। इसका मतलब क्या है कि सेल डिवीजन के साथ साथ कुछ और भी तो हो रहा होगा ना। अभी अभी हमने देखा है कि जब सेल डिवीजन होता है तो मास कम हो जाता है एक सेल का, उसका साइज कम हो जाता है, तो फिर ग्रोथ कैसे हो जाएगी? इसका क्या मतलब है कि सेल डिवीजन के साथ साथ कुछ और भी हो रहा है। और वो क्या है? एक तो इंक्रीजिंग सेल नंबर, सेल डिवीजन हो रहा है, लेकिन सेल भी ग्रोथ हो रही है।
ये चीज बच्चों को हमेशा ध्यान में लाना जरूरी है कि जब ग्रोथ हो रही है तो सिर्फ सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, क्योंकि सेल डिवीजन अगर होता सिर्फ, मान लीजिए आप एक चॉकलेट है, चॉकलेट बच्चों को तोड़ के दिखाइए कि हर चॉकलेट को तोड़ने से क्या हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, हर टुकड़े का मास कम हो रहा है, तो फिर ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ तभी होगी ना जब सेल साइज भी इंक्रीज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में आना चाहिए कि सिर्फ सेल डिवीजन ही नहीं चाहिए, हमें और भी बहुत कुछ चाहिए। और क्या चीज चाहिए? वो है ऑगमेंटिंग द सेल साइज। तो ये दोनों प्रोसेस जो है टुगेदर दे विल कॉज द ग्रोथ, अदरवाइज द ग्रोथ विल नॉट हैपन जस्ट बाय सेल डिवीजन। अब हम बात करते हैं मैटर और एनर्जी की। अब पहले बात करते हैं एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है कि a bean plant needs energy to survive and grow. Where does the energy that bean plant uses come from? अब ऑप्शंस क्या हैं? एयर, वाटर, सन, सॉइल, वर्म्स, इंसेक्ट्स, फर्टिलाइजर्स। अब आप चूज करके बताइए कि आपके हिसाब से बीन प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो आंसर में ऑप्शंस क्या है? देखिए, ऑप्शंस जो यहाँ है उसी में से आपको चूज करना है। तो अब लोग बता रहे हैं ए बी सी डी जी, कोई कह रहा है ऑल, कोई कह रहा है सन एंड सॉइल, कोई कह रहा है सन एंड फर्टिलाइजर, जी, ए बी सी डी जी। तो करेक्ट आंसर ये है कि प्लांट्स एनर्जी सिर्फ सन से मिलती है उन्हें। प्लांट्स जो हैं वो एनर्जी हमेशा हम बाहर से आने वाली एनर्जी की बात कर रहे हैं जो कि सन से आ रही है, और किसी चीज से एनर्जी नहीं लेता प्लांट। प्लांट ओनली सनलाइट से एनर्जी लेता है। अब हम आते हैं ह्यूमन बींग्स। अ ह्यूमन बींग ऑल्सो नीड्स एनर्जी टू ग्रो एंड सर्वाइव। वेयर डू यू थिंक अ पर्सन गेट्स द एनर्जी फ्रॉम दैट ही और शी नीड्स? आप हमको भी तो एनर्जी चाहिए। हमें प्लांट का समझ में आ गया कि वो सन से एनर्जी लेते हैं और कहीं से नहीं लेते। अब ह्यूमन बींग्स कहाँ से एनर्जी लेते हैं? यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? एयर, वाटर, सन, एक्सरसाइज, मीट, पोटैटोज। आपको सिर्फ इन्हीं में से चूज करना है, और कुछ अपने नए नए आइडियाज नहीं देने आंसर में। प्लीज इसी में से चूज करिए। तो ऑल, एयर, एक्सरसाइज। नाउ सी, हम लोगों में इतने मिसकॉन्सेप्शंस हैं, तो बच्चों में कितने सारे आइडियाज होंगे ऐसे। तो ह्यूमन बीइंग्स गेट एनर्जी ओनली फ्रॉम फूड, एंड फूड आइटम्स यहाँ क्या है? मीट एंड पोटैटोज। We do not take energy directly from air, water, sun, or exercise. We get energy only from food. All animals, they get energy only from food. That is meat and potatoes here. तो ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि प्लांट्स में एनर्जी कहाँ से आती है और एनिमल वर्ल्ड में कहाँ से आती है। अब हम फूड की बात करते हैं। अभी हमने एनर्जी की बात की, अब हम फूड की बात करते हैं कि what portion of their food do bean plants absorb through their roots? ए, बी और सी, इनमें से कौन सा आंसर आपको ठीक लगता है? What portion of their food do bean plants absorb through their roots? What portion of their food do bean plants absorb through their roots? तो कुछ लिख रहे हैं बी, कुछ लिख रहे हैं ऑल, और सी किसी का आंसर नहीं है। अभी मैं इसका जवाब नहीं दूंगी, मैं आगे बढ़ती हूँ। अब वापस भी वही क्वेश्चन है, व्हाट पोर्शन ऑफ देयर फूड डू बीन प्लांट्स एब्जॉर्ब थ्रू देयर लीव्स एंड स्टेम? What portion of their food do bean plants absorb through their leaves and stem? Okay, so some of you are saying all, some are saying B, और कुछ लोग सी का जब सी बता रहे।
तो आपको ज्यादातर लोगों को लगता है कि रूट से भी वो लेते हैं बीन प्लांट्स और लीव्स और स्टेम के थ्रू भी वो अपना कुछ फूड लेते हैं। और लास्ट में एक और क्वेश्चन है, व्हाट पोर्शन ऑफ देयर फूड डू बीन प्लांट्स गेट बाय मेकिंग इट इनसाइड देयर बॉडीज? What portion of their food do bean plants get by making it inside their bodies? आप जवाब दे रहे हैं सम, कोई कह रहा है ऑल, और कुछ लोग कह रहे हैं सम। Now see, the truth is that plants do not take in food directly at all. They make their food on their own. They don't take food from outside. तो आप देखिए कि हम लोगों में इतना मिसकॉन्सेप्शन है, तो बच्चों में कितना होगा। प्लांट्स न रूट के थ्रू लेते हैं, न लीव्स के थ्रू लेते हैं। दे ओनली टेक द इनऑर्गेनिक मैटर थ्रू द रूट्स एंड लीव्स एंड ऑल दैट, बट फूड नहीं लेते वो। फूड प्लांट्स खुद बनाते हैं। दे आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ फूड फॉर human beings or animals, because animals eat plants. So plants is the only thing, only living thing which makes their own food. That means they are the only things which convert inorganic material into organic material, which is the food that they make, right? अब ये देखिए, अब आप बच्चों को एक और थिंकिंग क्वेश्चन दे सकते हैं। वो क्या है? Write sentences explaining the relationships among the following sets of terms. क्या टर्म्स हैं? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड एनर्जी। आप अपने चैट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या लगता है कि रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और एनर्जी में क्या रिलेशन है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हमारा पर्पस जब हम बिफोर टीचिंग अ कॉन्सेप्ट, जब हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा पर्पस सिर्फ ये जानना है कि बच्चा क्या सोच रहा है। वो सही सोच रहा है, गलत सोच रहा है, इट्स ऑल राइट। वी आर नॉट टू लेबल हिम एज राइट और रॉन्ग। पर्पस सिर्फ ये जानना है कि कितना मिसकॉन्सेप्शन है, जो कि जब हम पढ़ाएंगे आगे तो उस मिसकॉन्सेप्शन को हम दूर करेंगे। इसलिए अभी आपको जो आपके दिमाग में आता है आप वो लिखिए, फिर जब हम डिस्कस करेंगे तो सबको अपने आप पता लग जाएगा कि जो सोच रहे थे वो सही था या नहीं था। तो हमारा पर्पस यहाँ किसी को भी लेबल करना नहीं है। तो लिख रहे हैं फोटोसिंथेसिस जनरेट्स एनर्जी एंड इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज इन एनिमल्स। वो तो ठीक है मैम, लेकिन आपको रिलेशनशिप इन तीनों टर्म्स में लिखनी है। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, एनर्जी, तीनों लिखना है आपको। ऑल आर कनेक्टेड तो सही है, लेकिन आपको ये लिखना है कि कैसे कनेक्टेड है, क्या रिलेशनशिप है। ऑल कनेक्टेड लिखने से काम नहीं चलेगा। फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक। तो इसमें एनर्जी की बात आई नहीं कहीं पर। आपको ये बताना है कि रेस्पिरेशन, एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम रेस्पिरेशन। अच्छा, आप लिख रहे हैं एनर्जी इज रेस्पिरेट जनरेटेड, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? तो देखिए, आप सोचने पे मजबूर हो रहे हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, बोथ आर वाइटल रोल फॉर एनर्जी जनरेशन, बट हाउ? क्या वाइटल रोल है? सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी विच इज फिक्स्ड इन फूड, दैट इज फोटोसिंथेसिस। पर इस सेंटेंस में रेस्पिरेशन कहीं नहीं आया आपका। एनर्जी इज रिलीज, लेकिन कहाँ? रेस्पिरेशन में या फोटोसिंथेसिस में? फोटोसिंथेसिस मेक्स ग्लूकोज विच इज यूज्ड इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन फॉर मेकिंग एनर्जी। ओके, तो देखिए, अब आप सब अपने दिमागी घोड़े दौड़ा रहे हैं, यही हमें क्लास में करना है। अब मैं एक और देती हूँ, फोटोसिंथेसिस, सनलाइट एंड फूड। अब इसमें आप क्या रिलेशनशिप है ये लिखिए चैट बॉक्स में। फोटोसिंथेसिस, सनलाइट और फूड, इन तीनों में क्या रिलेशन है ये बताइए। ये तो अब आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए।
What do you think is the relationship between photosynthesis, sunlight, and food? Yes, please. Yes, please. Okay, process, synthesis and sunlight लेकर photosynthesis करके food बनाते हैं. Okay, okay. So you're thinking. I'm not saying you're right or wrong, but you're thinking. Okay. Next is, what is the relationship between respiration energy and food? What is the relationship between respiration energy and food? All are interconnected, वो तो ठीक है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि स्पेसिफिकली कि रेस्पिरेशन एनर्जी और फूड में क्या रिलेशन है. अब आप लिखिए, जैसे आपने फोटोसिंथेसिस, सनलाइट और फूड में लिखा, वैसे ही वो आप रेस्पिरेशन एनर्जी और फूड में रिलेशन लिखिए. ओके, सनलाइट, फोटोसिंथेसिस, फूड, ये तो पुराना हो गया. अब रेस्पिरेशन का लिखना है ना आपको. रेस्पिरेशन, फूड इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी. ओके, सो यू आर गेटिंग द आइडिया. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन वर्ड नहीं है सर, यहाँ पर है रेस्पिरेशन एनर्जी एंड फूड. तो आपको इन्हीं तीनों में रिलेशन बताना है, राइट? फिर चौथा, ग्लूकोज फूड एनर्जी. ग्लूकोज फूड एनर्जी, अब इन तीनों में रिलेशन लिखिए. फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट ओनली ऑकर्स इन रेस्पिरेशन. वो तो ठीक है, लेकिन जो दिए हैं तीनों टर्म्स उसमें लिखना है आपको. फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, यहाँ पर तो स्टार्च वर्ड नहीं है, यहाँ है ग्लूकोज फूड एंड एनर्जी. इन तीनों में आपको रिलेशन लिखना है. रिलीज ग्लूकोज ब्रोकन इनटू एनर्जी इन रेस्पिरेशन. नहीं मैम, यहाँ तो रेस्पिरेशन है ही नहीं. फूड कंटेन्स ग्लूकोज ब्रेकडाउन इन एनर्जी. ओके, food has glucose, which is when broken down produces energy. Okay, so great. I am so happy that you have put on your thinking caps and you've written so many ideas. अब यही आपके जो आइडियाज हैं या बच्चों के जो आइडियाज हैं, अब हम इनको फर्दर चेक करते हैं. कैसे चेक करते हैं, ये देखिए. हाउ डू यू थिंक अ बायोलॉजिस्ट वुड डिफाइन द टर्म रेस्पिरेशन? अब आपने इतने सारे आइडियाज ले लिए बच्चों से, ठीक है, फिर आपने पढ़ाया. अब आप पूछिए कि पहले आपके माइंड में क्या आइडिया था रेस्पिरेशन का, और अब एक बायोलॉजिस्ट की तरीके से आप रेस्पिरेशन के बारे में क्या लिखोगे कि रेस्पिरेशन क्या है. एक कॉमन मैन से पूछेंगे तो बोलेगा ब्रीदिंग, या बोलेगा एयर इन एयर आउट. पर एज अ बायोलॉजिस्ट और एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट आप क्या डेफिनेशन लिखोगे कि रेस्पिरेशन क्या है. आफ्टर ऑल एक लेमैन के जो अंडरस्टैंडिंग है और एक जो बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अंडरस्टैंडिंग है, उनमें फर्क होगा ना. तो बायोलॉजी के हिसाब से आप क्या लिखोगे कि रेस्पिरेशन क्या है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड एनवायरनमेंट. अच्छा, अभी देखिए हमने पीछे इतना सारा रिलेशन किया रेस्पिरेशन, फूड, एनर्जी, इन सब के बीच में. तो वो करने का आइडिया क्या था? ये आइडिया था ना कि उन कॉन्सेप्ट्स को हम बायोलॉजी में ला रहे हैं. इनहेलिंग ऑक्सीजन, एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ऑकर्स इन रेस्पिरेशन, राइट. सो हमें इनहेलिंग ऑक्सीजन और एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड से आगे बढ़ना है, क्योंकि प्लांट्स भी तो वो करते हैं रेस्पिरेशन. तो food is broken down to yield energy that is happening in respiration. ओके, चलिए हम देखते हैं. अब आपने इसके बारे में सोचा कि क्या है बायोलॉजिस्ट के तरीके से देखने से रेस्पिरेशन. अब जवाब है, जवाब क्या है? प्रोसेस बाय विच एरोबिक ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन फूड, इन पर्टिकुलर ग्लूकोज, टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी. तो अब आप अपना जवाब खुद वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके माइंड में सही आइडिया है या आपको अपने आइडिया को इम्प्रूव करने की जरूरत है. बट more particularly, these are respiration is a sequence of chemical reactions in which glucose is combined with oxygen to produce carbon dioxide and water. Now this is even more specific, and not only that, at the same time chemical potential energy in the glucose is released and converted to thermal or to chemical potential energy in another compound which is ATP. तो देखिए
ये प्रोसेस तो है ही जिसमें एरोबिक ऑर्गेनिजम्स ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आप उसके डिटेल में जा रहे हैं कि दो चीजें एक साथ हो रही है। एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें एक नया मैटर, नए कंपाउंड बन रहे हैं पुराने वालों को तोड़ के, और दूसरा प्रोसेस साथ साथ चल रहा है, वो है एनर्जी या तो रिलीज होने का या एनर्जी स्टोर हो जाने का। तो जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है कंपाउंड बनने का, वो क्या है? ग्लूकोज विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन जो एनर्जी का सीक्वेंस चल रहा है उसमें क्या है? एनर्जी जो ग्लूकोज में थी उसको रिलीज करके उसको थर्मल एनर्जी के फॉर्म में या तो रिलीज किया जा रहा है, या अगेन उसको एक एटीपी कंपाउंड में केमिकल पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर किया जा रहा है। तो दो चीजें साथ साथ चल रही है, एक मैटर के लेवल पे, एक एनर्जी के लेवल पे। ये दोनों चीजें हमें क्लैरिफाई करनी है रेस्पिरेशन के लिए। अब आगे आते हैं फोटोसिंथेसिस पे। अभी हमने पीछे फोटोसिंथेसिस की इतनी बात की, अब हम बच्चों से दोबारा पूछते हैं कि एक आइडिया है हमारा कॉमन मैन का फोटोसिंथेसिस का, चलो जिसकी तरीके से आप कैसे डिफाइन करोगे फोटोसिंथेसिस को। अब आप अपने चैट बॉक्स में फिर से लिखिए कि आपके माइंड में एज अ बायोलॉजिस्ट क्या आपके दिमाग में डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस। सो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। There is still some time. We started a bit late, so please don't mind if I take 5-6 minutes extra. Prepares food. No, not nice session. Plus, I want answers from you. Please write down the answer. What would you define photosynthesis as? Even if you are not a bio teacher, still you can become a biologist for some time for this session, please. हाँ जी, बताएं। मैं तो देखिए फिजिक्स की टीचर हूँ, लेकिन मैं बायोलॉजी डिस्कस कर रही हूँ आपसे, क्योंकि हम सब के लिए इतनी बायोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इट वुड बी सो नाइस इफ you could also contribute. It's a process which uses sunlight to make food. Okay, okay, okay. So let us now see what we can write. So write process by which plants use sun's energy to make food, that is glucose. अब ये प्रोसेस है कि जिसमें एनर्जी यूज करके और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा। अब तीसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं हम, फूड। अभी तक हम क्या कर रहे थे? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, दो चीजें हमने डिफाइन की। अब फूड कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ डू यू डिफाइन फूड फॉर अ बीन प्लांट एंड हाउ डू यू डिफाइन फूड फॉर अ पर्सन? तो एक फूड की डेफिनेशन है प्लांट्स के लिए, एक फूड की डेफिनेशन है ह्यूमन बींग्स के लिए। क्या दोनों अलग अलग हैं या क्या दोनों एक जैसी हैं? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो आप अपने आइडिया लिखिए। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच प्लांट्स टेक प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी टू फूड। नहीं, वो पीछे बीत गया। अब मैं आपसे कह रही हूं कि फूड को डिफाइन करिए फॉर अ प्लांट एंड फॉर अ ह्यूमन बीइंग या फॉर एन एनिमल। क्योंकि देखिए, हमें ये एक एक लैंग्वेज होती कॉमन मैन की, एक लैंग्वेज होती साइंस की। अभी हमें साइंस की लैंग्वेज पे बच्चों को सोचवाना है। इसलिए हमें खुद क्लियर होना चाहिए कि फूड क्या चीज है इन इन द आईज ऑफ द साइंस, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। ओके, लेट अस सी। Food is a class of substances containing usable organic compounds. देखिए, प्लांट्स ने जब फूड बनाया तो उन्होंने क्या किया? इनऑर्गेनिक मटेरियल लिया और उसको ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। उसको एक एनिमल ने खाया, या जब एनिमल ने खाया तो उसने क्या किया? उस फूड को क्यों लिया? क्योंकि उस फूड में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको वो ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज हो सकती है। तो food is a class of substances containing usable organic compounds. But functionally, another thing is
that it is a class of substances that organisms can use as sources of energy for metabolism or materials for growth. तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम फूड कह रहे हैं, फंक्शनली उनका क्या मीनिंग है एक लिविंग बीइंग के लिए, कि दीज आर द substances which can be broken down to get energy for metabolism or to get material for growth. तो देखिए मैटर और एनर्जी ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं. कैसे प्लांट्स मैटर इन करते हैं और एनर्जी इन करते हैं. एनर्जी सिर्फ सन से आती है. मैटर कहाँ कहाँ से आता है? एयर से आता है, नीचे सॉइल से एब्जॉर्ब होता है, जो पानी एब्जॉर्ब होता है उसके थ्रू होता है. लेकिन लिविंग जो एनिमल वर्ल्ड है वो कहाँ से एनर्जी मिलती है? उनको सिर्फ फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी मिलती है. मैटर तो वो भी अंदर ले लेते हैं. कहाँ से ले लेते हैं? जब हम एयर ब्रीद इन करते हैं, पानी पीते हैं, वहां से भी हमें मैटर तो अंदर जाता है हमारा, लेकिन एनर्जी वहां से नहीं मिलती हमें. तो हमेशा दोनों चीजों के बारे में सोचना है कि मैटर इन एनर्जी इन ये कैसे हो रही है, और मैटर आउट एंड एनर्जी आउट ये दोनों चीजें कैसे हो रही है, ये भी हमें सोचना चाहिए, जो मैंने अभी तक इस सेशन में नहीं लिया है. ये आप इसके ऊपर क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ आई थिंक वी कैन क्रिएट थिंकिंग क्लासरूम्स. कुछ चीजें हम क्लास लेने के पहले बच्चों से थिंकिंग करवा सकते हैं, कुछ चीजें कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के बाद में हम थिंकिंग करा सकते हैं. दीज आर माय contact details. If you are interested in any particular sessions, you can write to me on my mobile WhatsApp, or you can email to me. If you want to see the other kind of programs that I conduct, you can check my Facebook page or LinkedIn page. So thank you so much, and if you have any questions, I'll be very happy to answer them. So I think we started a bit late, but I have time for some questions if you would like to ask any questions. Thank you so much. So kind of you to write good words for me. I'm very happy to share, because I always find that teachers are very responsive here. Even on chat, they do write answers which really invigorate me and they take the session forward, not I alone. We all together have taken the session forward. So thank you so much. So I'm just waiting to see if there are any questions. I'll be happy to answer them. Okay, so thank you so much. I don't see any questions here, particularly from science. Okay, so thank you so much. Then I'll be leaving the session. So, keep giving you more tips. Okay, if you have any topics in mind, please tell me. I'll be happy to take a session on those topics. If you can suggest any. Okay. So thank you so much. Then I'll be leaving the session now. Thank you so much for your appreciation and most of all your wonderful participation. Thank you so much.